Bismillahirrahmanirrahim. Yes, students, welcome back to the second lecture of Human Resource Management. In this lecture, we are going to start with the very first topic, that is the objectives of human resource management. There are certain kind of objectives of human resource management, and we are going to start with one by one. The very first objective of implementing a human resource management program in any organization is basically the personnel objectives. It is to assist employees in achieving their personal goals, at least as far as these goals enhance their individual's contribution to the organization. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके अंदर हर इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही होती है कि वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को किस तरह पुट अप करके ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर. देन कम्स फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज टू मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट अ लेवल that is appropriate to the organization needs. Human resource are to be adjusted to suit to the needs of the organization. Why? Because organization एक ऐसी entity होती है कि जिसकी demands जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन organization की demands को पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एफर्ट को, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन को पुट अप कर रहा होता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उनको सफिशेंटली पूरा किया जा सके. Human resources are basically adjusted to suit to the demands of organization. आपने देखा कि पहले हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की, फिर हमने फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की. लेट्स मूव टू द थर्ड लेवल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Organizational objectives, in the organizational objectives, it is basically recognized, what we do is that we basically recognize the role of human resource management in bringing about organizational effectiveness. It makes sure that human resource management is not a kind of an individual or a standalone department, but rather it is a set of means that is there in an organization to assist the organization with achievement of its primary objectives. The HR department in any organization basically exists to serve the rest of organization. हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है दैट बेसिकली एक्ट्स एट द हार्ट एंड द सोल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. वाई? बिकॉज जी HR डिपार्टमेंट ही होता है जो मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काबिल लोगों को उन डिपार्टमेंट्स का हिस्सा बनाता है, और ये सेट ऑफ इंटेलिजेंट और ब्राइट लोग ही होते हैं जो कि उस अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपनी डिपार्टमेंटल टास्क्स को सफिशेंटली अचीव करते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स पर अपनी टास्क को सफिशेंटली अचीव करने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन या रोल प्ले करते हैं. We started off with the personnel objectives, then came the functional objectives, then came the third level, that was the organizational objectives, and finally we are moving to a higher cadre or a higher set of objectives, that is the societal objectives. Just like we are part of a society, the organizations are also a part of society. The societal objectives basically seek to ensure that the organization becomes an entity that is socially responsible to the needs and challenges of the society, while the organization being a member of the society has to make it sure as well that it has to minimize the negative impact of such demands upon the organization as well. Society at large demands every organization to play its positive role. There is a general consensus among the members of the society that just like a society deems the individuals to be important part of it, it also deems the organizations to be critical part of it as well. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा कलीदी और अहम किरदार अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में या फेलियर में, तो ये गलत ना होगा. ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही होता है दैट हैज़ टू मेक इट श्योर कि अगर तो अच्छे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगी, और अगर तो अच्छे लोग उस किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म या किसी और बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सीड नहीं कर सकती. एंड दैट इज़ अ जनरल रूल जो कि आपको अपने आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस में भी नज़र आता होगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सीड नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो ब्रेन्स हैं, जो ब्रेन बिहाइंड देयर वर्क है, वो काबिल, इंटेलिजेंट और अपनी फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग ना हों. दुनिया ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स से भरी हुई है कि जिसके अंदर हमने देखा कि HR डिपार्टमेंट की मिसकैलकुलेशंस जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को डूम या डिक्लाइन की तरफ लेकर चली जाती हैं. एक बहुत बड़ी सेलफोन मैन्युफैक्चरर की कंपनी के CEO ने ये बात की थी कि अगर आप
मुझसे मेरी कंपनी ले लें, मुझसे मेरा सेटअप ले लें, मुझसे मेरी तमाम असेंबली लाइन, सब कुछ आप टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स मेरे से ले लें, बट अगर आप मुझे ये 12-13 साइंटिस्ट दे दें, सो आई विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट पार्टिकुलर कंपनी, सेकंड वेरिएंट उसका बना लूँगा और आप देखेंगे कि उस सेकंड वेरिएंट फर्स्ट वेरिएंट से ज़्यादा कामयाब होगा। व्हाई? बिकॉज़ ही न्यू कि असल जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उस कंपनी को सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए, वो उन 12-13 साइंटिस्ट्स में है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली पुट अप किया और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आगे चलते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, let me quote a few examples, and I hope these examples will be able to clear certain things to you. For example, a famous US bank holding company, I'm not going to name it, but there is a famous US bank holding company. उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर ये हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, that basically didn't care about the fact कि और एम्प्लॉयज़ को बताया जाए कि what are their rights, what they can do and what they cannot do, if they are going to face an issue, to whom they are going to report, ठीक है, and if they are going to report, how they can call or how they can request any kind of feedback to be provided to them, that what progress have been made on that very particular issue or incident. नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड होते हैं। जो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट होते हैं, सो सर्टेनली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, विच मीन्स दैट अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एट ए लार्ज कम होगी। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्री इंडिया में भी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में इवन मौजूद हैं, कि जिसके अंदर जब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की एडवोकेसी के लिए काम करता है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स के लिए काम करता है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइमली मैनर में प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि व्हाट आर द रेड लाइन्स दैट आर नॉट टू बी क्रॉस्ड, ठीक है, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, what should be done and what is not expected from the high ups, and if something bad happens, how to navigate through that very particular difficult path. If I'm not getting what I'm entitled to whom I'm going to report, to whom I'm going to ask. So ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स से हमें क्या पता चलता है? इन एग्जाम्पल्स से हमें एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है और पार्टिकुलरली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और उनकी जो टीम होती है, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू डिसाइड द फॉर्च्यून, हु आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंपनी। इफ दे आर वेरी मच वेल वर्स्ड अबाउट द फैक्ट दैट दे आर द वंस हु आर गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन या कंपनी की सिमत का तयन करने वाला ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, अगर तो वो अपने काम को डिलीजेंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, द थिंग इज दैट वेरी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम सक्सीडिंग इन दैट वेरी पार्टिकुलर इंडस्ट्रियल क्लस्टर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को तबाही से भी कोई नहीं रोक सकता। सो द थिंग इज दैट वेरी पार्टिकुलर कैलकुलेशन दैट हु शुड बी हायर्ड, एंड इफ समवन इज बीइंग हायर्ड, इज ही द राइट पर्सन, एंड इफ ही इज द राइट पर्सन, आर वी as a human resource manager or the team of that very particular HR department, are we providing that very particular candidate or the set of candidates ample number of opportunities so that for proper training, for proper counseling, and are we providing them sufficient grounds as well कि वो even rest भी कर सके अगर वो stressed out या stress burnout का शिकार हो जाते हैं। So the thing is कि human resource management has to be, it is a job that has to be taken very seriously, and if a job has to be taken very seriously, it has to be made sure कि जो डिपार्टमेंट का ब्रेन, जो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है डिपार्टमेंट, इट itself needs to be composed of competent people. इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन के जिसके अंदर एक नई कंपनी बनती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल की सेटिंग को कि जिसके अंदर तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी अवेलेबल है, तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ पे जो लोग हायर होते हैं दे आर नॉट वेरी मच वेल वर्स्ड अबाउट देयर मेडिकल नॉलेज, या वो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है किसी भी पार्टिकुलर डोमेन को हैंडल करने के लिए। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ लोगों को न सिर्फ वहाँ पे फिजिकल रिस्क का सामना करना पड़ेगा, बल्कि लाइफ रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा, हेल्थ रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसे लोगों को हायर किया दैट आर वेरी मच वेल वर्स्ड एंड दे आर नोइंग देयर फील्ड इन अ प्रॉपर मैनर, द थिंग इज दैट दे विल बी मेकिंग इट श्योर दैट नो लाइफ गेट्स वेस्टेड। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी मच वेल वर्स्ड। वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने तबाही के दहान पे पहुंचाना हो तो आप उसको किसी भी तरह से फिजिकल नुकसान ना पहुंचाएं,
आप वहाँ से ब्रेन ड्रेन कर लें, आप वहाँ के काबिल लोगों को पुल आउट कर लें उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, और उस इन्फ्लेटेड गैप को आप फिल कर दें, उस वॉइड को आप फिल कर दें उन लोगों के थ्रू कि जो लोग उस पार्टिकुलर डोमेन से बिलोंग नहीं करते, या जो लोग फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म की बुनियाद पर या किसी भी सिफारशी कल्चर का फ़ायदा उठाते हुए उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, यू विल सी दैट वेरी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टुवर्ड्स अ स्टीप काइंड ऑफ अ डिक्लाइन, कि जहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर कामयाबी के रास्ते की तरफ कोई नहीं लेकर जा सकता अनलेस एंड अनटिल एक मेजर ओवरहॉलिंग हो या एक बड़ी सर्जरी करनी पड़े, जिसके अंदर उन लोगों को निकालना पड़े उस सिस्टम से जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ये सारी एग्जाम्पल्स आपसे इसलिए शेयर की जा रही है जस्ट टू टेल यू कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर एज अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर इतना क्रिटिकल है, तो फिर बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए ये पढ़ना कितना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है। वाई? बिकॉज इफ़ अ कंपनी इज़ एबल टू प्रॉपरली मैनेज इट्स ह्यूमन रिसोर्स, it will be having the competitive advantage that no one else will be able to replicate. टेक्नोलॉजीज कॉपी हो जाती हैं, सेटअप्स कॉपी हो जाते हैं, डेटा ब्रीचेज हो जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि जो आपके पास काबिल तरीन ब्रेन्स है जिनकी बुनियाद पर कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करती है, वो जो आइडियाज़ उनके माइंड में डेवलप हो रही होती हैं, वो जो इनोवेशन उनके ब्रेन में डेवलप हो रही होती है, वो जो डिफ़िकल्ट पाथ्स से नेविगेट करके ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना कि जहाँ पे वो सक्सीड कर जाए, वो सिर्फ उनके दिमाग में होता है। उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता, उसको इमिटेट नहीं किया जा सकता। सो द थिंग इज़ दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज दैट द कंपनीज हैव एट देयर डिस्पोजल इज़ द ह्यूमन रिसोर्स. The companies have to make it sure that they are providing the ample kind of opportunities to nurture their human resources in the best possible way. यही बेस्ट पॉसिबल वे ये होता है जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाती हैं कि अगर वो जितना ज़्यादा अपनी एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्ट करेंगी, उतना ज़्यादा उनको रिटर्न मल्टीप्लाइड होकर मिलेगा। सो आज हम इस लेक्चर में जिस चीज़ पे प्रॉपर डिस्कशन में एंगेज हुए हुए हैं और जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ द थिंग इज़ कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर हार्ट ब्लड को पंप करना छोड़ देगा तो ऑफ कोर्स होल ऑफ द बॉडी विल कोलैप्स, एंड सेम विल हैपन विद द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कोलैप्स करेगी और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो हो सकता है अगले साल हो ही ना, आपको नजर ही ना आए. वाई? बिकॉज दैट वेरी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग फिल्ड विद द एम्प्लॉयज दैट आर नॉट एंटाइटल्ड टू वर्क एट देयर पार्टिकुलर पोजिशंस. They are the ones who are not having the right skill that is required by the organization. They are the ones who are not having the necessary pool of expertise that is being required by that very particular organization. ना उनके पास expertise है, ना उनके पास skill है, ना उनके पास even qualification exist करती है जिसकी बुनियाद पर उस organization को चला सके. हो सकता है in the meanwhile उस organization को धक्का लगा के किसी तरह आगे पहुंचाया जा सके, but that will not work in the long run. Sometime, this thing will blow up. और जब ये ब्लो अप करेगी, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक इन टर्म्स ऑफ द डैमेज दैट इट इज गोइंग टू डू. इट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द रेपुटेशन ऑफ दैट वेरी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द सोसाइटी इन विच दैट वेरी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जिसको किसी भी तरह से मेरिट पे, क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, एक्सपर्टीज़ पे या नेसेसरी स्किल सेट जो रिक्वायर्ड होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, न सिर्फ अपनी हायरिंग या इंटरनल हायरिंग में, बल्कि इस चीज़ पे भी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जॉब को परफॉर्म करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स को अचीव करके कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करना है और सर्वाइव करना है, उसके अंदर भी ऐसे लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है कि जो अपने काम को सही तरीके से समझ चुके हों और सही तरीके से समझने के बाद उसको सही तरीके से करने की अहलियत के म्यार पे भी पूरा उतरते हों. दिस इज़ व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली अबाउट. थैंक यू.